ओके सो भाई मैथ्यू से जो कुछ भी सुना, क्या हम उससे आशीषित हुए हैं? Have you been blessed by what Brother Matthew has shared with us? क्योंकि ये चिंता और वरी और एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो हम सबको आता है. Because this worry and anxiety is something which happens to each one of us. सो बहुत जरूरी है इसके ऊपर हमको जय पाना. So it is very important that we overcome this. आपको पता है यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या कहकर गए थे? Do you know what Jesus said to his disciples when he was about to be taken up in heaven? एक चीज देकर गए थे, He gave them one thing. उनके पास रख कर गए थे. He left it with them and went. यूहन्ना अध्याय 14 का 27 में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं. In John chapter 14 verse 27 it says that my peace I give unto you. देखो वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं. It says that I am giving my peace to you. क्योंकि यीशु मसीह यहाँ 33.5 साल इस दुनिया में थे, उनको पता था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मनुष्य को चाहिए वो है शांति. Because when Jesus was here on this earth for 33 and a half years, he knew that the greatest thing that man needed was peace. उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें अच्छी तरह प्रचार करना सिखाता हूँ, कैसे शैतान को निकालना सिखाता हूँ. नहीं, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट था. सबसे ज्यादा चीज परमेश्वर चाहता था कि हम शांति में रहे. Jesus didn't say, I will give you the power of preaching or I will give you the power of driving out demons. He knew, because that is not that important. What is most important is क्या हम वो peace. वचन देख सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 14:27. Can we turn to John chapter 14 verse 27? वो कहता है संसार एक तरह का शांति देता है, वो मैं नहीं दे रहा. He says that the world gives you one type of peace. That is not the peace देखो I'm giving. संसार की शांति किस में है? The peace that the world gives, what is it? अच्छा कमाई होगा, अच्छा घर है, अच्छी प्रॉपर्टी है, लाइक सब कुछ मेरे साथ अच्छा है, ये संसार की शांति है. राइट? Like if I have a good house, I have a lot of property, I have money, then that is a peace that the world gives. और यीशु बोला संसारिक लोग ये सब चिंताओं में लगे रहते हैं. And Jesus said that the people of the earth, worldly people are running after these things. ये सब मेरे को घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कपड़े, मेरे बच्चे का, ये सब बातों के लेकर संसारिक लोग, वो लोग ये चिंता करते रहते हैं. That I need nice clothes to wear, about my children. These are the things that the worldly people run after. लेकिन यीशु कहते हैं पिता को पता है कि हमारी क्या आवश्यकता है. But Jesus says that the Father already knows what we need. यीशु कहता है तुम ये मत सोचते रहो, So Jesus says you don't need to worry about तुमको that. तो ये सब मिलने ही वाला है. That because you're anyways going to get all that. तुम्हारे बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे, Your children will never beg for bread. तुमको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, You will not need to take loan from anyone. क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष करेगा. Because God is going to bless us. क्योंकि हर एक उत्तम वस्तु स्वर्ग से आता है Because every good gift comes from heaven. और वो अपने बच्चों को देगा. And He is going to give those good gifts to His children. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज करते रहे. But God wants us that we keep on seeking Him. जब हम ये दूसरे चीज के तलाश में रहेंगे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं. When we run after these other things, then that means we are going away from क्योंकि God. हमारा मन इन चीजों में लगा है Because our mind will be after these things. और हम परमेश्वर से, इसके लिए हमारे अंदर डाउट आता है कि ये मुझे मिलेगा क्या नहीं. And we will be having a doubt about God, that will I get this or not. देखो वहां लिखा संसार एक तरह की शांति देती है, मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं दे रहा. Jesus says that the world gives you a type of peace, and that is not the peace I'm going to give you. मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ. He says, my peace I give unto you. यीशु की शांति पता है आपको क्या है? Do you know what is the peace that Jesus क्रूस gives? पे जब वो मर रहा था, When Jesus was being crucified on the इतना cross, उसको टॉर्चर किया था, when he was being tortured unimaginably, फिर भी वो कहता है पिता उनको क्षमा कर. even then he says, Father, forgive them. ये है यीशु की शांति. That is the peace that Jesus सोचो gives. एक आदमी जो टॉर्चर है, मर रहा है, उसको असहनीय तकलीफ है, पिता से उसका अलगाव होने वाला है, फिर भी वो कहता है तुम आशीषित रहो. Just imagine there's a person who has been tortured unimaginably, and he's going to be separated from God, and then he prays that, Father, forgive them. वो कहता है पिता वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उनको बचा ले. He says, Father, forgive them, for they do not know what they're तो doing. प्रिय भाइयों बहनों, ये है यीशु की शांति. Dear brothers and sisters, this is the peace of Jesus. चाहे हम कितना भी सफर करें, That no matter how much we suffer, चाहे लोग हमारे कितना भी बदनामी करें, no matter how much people say bad things about लेकिन us, हम उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, but we'll be able to pray for them. क्योंकि यीशु की शांति हमारे अंदर है. Because the peace of Jesus is in us. सो प्रिय भाइयों बहनों, एक वचन लिखा है भजन संहिता 62 में,
In Psalm 62, it says, उसका 8वां वचन उधर कहता है, हे लोगों हर समय मुझ पे भरोसा रखो। in Psalm 62, verse 8, it says that trust in him at all times, you और वहां people, लिखा अपनी अपनी मन की बातें खुलकर कहो। and pour out your heart before him. आपको पता है डियर ब्रदर सिस्टर प्रॉब्लम क्या है? But brothers and sisters, do you know what the problem is? प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा कोई मनुष्य के पास भागते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। That we always run to a man to solve our हम problems. सोचते हैं मैं अपना बर्डन किसी व्यक्ति को शेयर करूं, वो मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ के देगा। We'll think that, okay, I'll go and share it to another person and he will give me a solution. सबसे बड़ी समस्या ये है, This is the biggest हम problem, परमेश्वर के पास नहीं जाते, that we don't go to God. हम पहले लोगों को ढूंढते हैं, कौन मेरा मदद करेगा। We look for people and we'll think who will help me. लेकिन ये वचन क्या कहता है? But what is this verse? हर समय चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कहाँ जाना है सबसे पहले? That every time, no matter what is the problem, where do you have to go first? परमेश्वर के पास। To God. मैं पिछले हफ्ते में एक पुस्तक पढ़ रहा था, फर्स्ट सैमुएल, Last week I was reading a book और मैं वहां पर एक स्त्री के बारे में पढ़ा, हन्ना। and I read about a woman called Hannah. वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम एलकाना है, And there was a man called Elkanah, उसकी 2 पत्नियां थी, and he had 2 wives. एक तो हन्ना And one was और Hannah, दूसरे का नाम है पनिन्ना। and the other was तो Peninnah. परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा नहीं दिया था, And God didn't give Hannah any children. उसके वजह से वो दूसरी उसकी जो वाइफ थी वो उसको हमेशा चिढ़ाती रहती थी और ऐसे बोलती रहती थी, इसको ये ब्लेसिड नहीं है और इसको बच्चा नहीं है। And so this wife who had kids used to always torture Hannah and keep on saying all sorts of things to her because she पहला didn't have सैमुएल children. आप 1 में पढ़ लेना वो चीज। Please read this in 1 Samuel chapter 1. उसका एक काम करते हैं, हम 8वां वचन देखते हैं, पहला सैमुएल 1:8, 1 Samuel chapter 1 verse 8. सॉरी 1:7। 1 verse 7. देखो यहाँ पर कुछ चीज था जिस कारण से ये हन्ना का मन बहुत दुखी और निराश उदास था। So there was this something that was always troubling Hannah, and because it was उसका making her 6ठे sad. वचन से मैं पढ़ता हूँ, In 1 Samuel chapter 1 verse 7. 6। परंतु 6. उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ती रहती थी। और 7, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती तो पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वो रोती और खाना भी नहीं खाती। And her rival also provoked her severely to make her miserable, because the Lord had closed the womb. So it was year by year, when she went up to the house of the Lord, that she provoked her. देखो वो परमेश्वर के भवन में जाती थी, So she used to go to the house of the Lord. और ये जो स्त्री थी पनिन्ना, वो देखती थी कि ये परमेश्वर के पास जा रही है, तब उसको चिढ़ाती थी, अरे तू तो हर संडे जाती है, प्रार्थना करती है, देख अभी भी तेरी हालत ऐसी है। So when they're going to the house of the Lord, that time she used to say lots of things to Hannah, that see, we're going to every Sunday you're going to church, and that too you then even then you don't have children. हमसे भी कोई ऐसा कह सकता है, अरे तू हर रविवार से तेरा अभी भी हालत ऐसा है। Maybe even to us, people may say, like, every day you're going to church and still things are like this for you. इसलिए देखो इस कारण वो उदास थी और रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी। And that's why Hannah was sad and she was weeping, and even she didn't want to eat. आगे उसका पति उसको कंफर्ट कर रहा है, And then आप देखो उसके आगे 8वें वचन में उसका पति उसको कंफर्ट कर रहा है, हन्ना क्या इतने 7, 8, 10 बच्चों से क्या मैं उत्तम नहीं हूँ? And Elkanah is trying to comfort her and saying that, see, Hannah, am I not better to for you more than 10 sons? लेकिन क्या मनुष्य जब हमको कंफर्ट करता है वो ज्यादा टाइम रहता है? But when people try to comfort us, does that comfort remain with थोड़ा us? टेम्पररी उसको खुशी मिला, उसने खाना खा लिया, For some time she was okay, and then she had her food. लेकिन बाइबल कहता है उसका मन फिर भी उदास था। And the Bible says that even then she was sad. क्यों पता है? Do you know why? क्योंकि एक चीज बाकी था, Because one more thing was remaining. उसके 9वें वचन में लिखा है, तब वो उदास मन लेकर परमेश्वर के पास गई। It says that she took a sad heart and came before the Lord. देखो मनुष्य हमको टेम्पररी कुछ बात बोलेगा, सेटिस्फाई होंगे हमारा मन शायद, So people may come and say some temporary things and to satisfy us.
लेकिन हृदय के अंदर जो हमारी तकलीफ है, वेदना है, वो जाना है तो परमेश्वर के पास जाना है। But if the sadness that we have inside our heart, if that has to go, we have to go to God. वहां लिखा है, आगे आप पढ़ना, समय नहीं है मेरे पास, वहां लिखा है वो आगे जाके ऐसे वो मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी, दिल से रो रही थी, उसका मुंह हिल रहा था लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे, आत्मा से वो प्रभु से रो रो के कह रही थी, प्रभु मुझ पे दया कर। Further, it says that how she was crying so sorrowfully that she was not able to say words from her mouth. Only her lips were hearing, were moving, and she was praying before God. देखो, जब उसने अपना ये बर्डन परमेश्वर को सौंपा, When she gave this burden to God, उसका 17 वचन में लिखा है, फिर उसका मन उदास नहीं हुआ। in verse 17 it says that then she was not sad उसके anymore. बाद ऐसा लिखा, उसके बाद से उसका मन उदास नहीं हुआ। It says that afterwards, after that, she was not sad again. तो प्रिय भाइयों बहनों, आपसे बात कहना चाहता हूँ, Dear brothers and sisters, I want to tell you one thing. अगर हम अपना बर्डन परमेश्वर के पास ले जाते हैं, That if we take our burden to the Lord, हमारा मन का उदासी दूर होगा, and then the sadness of our heart will be removed. हमारे हृदय का उदासी दूर होगा, The sadness of our heart will be क्योंकि removed उसकी शांति हमारे हृदय में आएगी। because His peace will come in our heart. मैंने पिछले बार भी अपनी टेस्टिमनी दी थी, एक छोटी बात में बोलता हूँ, 26,50,000 का एक बड़ा बोझ मेरे सर के ऊपर था। I gave my testimony last week also that when I had a huge burden of 20 मैंने lakh बहुत rupees कोशिश loan. किया 5 साल की मैं फटाफट वो चुकाऊं। बाद में जब कोविड आया, वो मेरा लोन जो था 20 साल से 15 हुआ था, जब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मैंने जब इंक्वायरी की, वो वापस 20 साल हो गया था। And I thought that within 5 years I'll be able to clear this 20 lakh loan. But after 5 years with added interest, again it went back to 20 lakhs. आपको पता है, मैं परमेश्वर के पास गया, मैं बोला, प्रभु मैंने तो बहुत कोशिश किया, ये 5 साल में मैं सोचा कि ये 15 साल में हो जाएगा, लेकिन ये वापस 20 साल हो गया, अब मैं कब तक काम करूं प्रभु, मेरे अंदर उतनी ताकत भी नहीं है, मैं कैसे इसको चुकाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I went to God and I said, God, how can I clear off this huge loan? After trying for so many years, again it's come back to 20 lakhs. I can't do anything about it. सो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने जैसे प्रार्थना की, कुछ ही समय के बाद परमेश्वर ने मेरे सारे कर्जे को दूर कर दिया। After I prayed, after some time after I prayed, God miraculously removed the whole loan which was there on पूरा me. 26,50,000 का जो कर्जा मेरे ऊपर था, सब कुछ हटाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। The entire 26 lakhs loan which was there on me, God helped me to remove, to pay it off. पिछले महीने ही मैंने अपने घर का कागजात बैंक से जाकर लेके आ गया। And I was even able to get my house documents from the bank. मैं आपको ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हमारी चाहे कोई भी परेशानी हो, अगर हम प्रभु के पास उसके रखते हैं, उसके पास समाधान है। No matter what difficulty we are having, if we go to the Lord, God has a solution for it. मेरी समझ के सहारा से चलता तो 20 साल चलता था, और ये लोन If I had taken if I had taken on my own understanding, I would be still paying the loan for the next 20 years. लेकिन परमेश्वर ने उस कार्य को 1 महीने के अंदर ही कर दिया। But God, within 1 month, had paid off the loan. हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, For God, nothing is impossible. वो जीवित परमेश्वर है, He is a living वो God. आप सबके तकलीफों को जानता है। He knows each of our और problems. भाई से हमने सुना, वो केयर करता है हमारा, And like we heard from brother, He cares for us. परमेश्वर हमारा केयर करता है। God cares for us. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपका केयर करता है, Dear brothers and sisters, God आपके cares for बच्चों us. का केयर करता है, God cares for your आपके children. परिवार के हर सदस्य का केयर करता God है। cares for every member in your इतना family. प्यार हमसे परमेश्वर करता है। God loves us so much. क्या हम जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं? Let's clap. हमारे महान परमेश्वर के लिए। He is a great God. धन्यवाद हो, जो कुछ भी सुना बहुत ही ब्लेस हो गया मैं। I've been blessed by today's word. Let's thank God for that. जो ब्रदर मैथ्यू ने शेयर किया, इट्स वो हमारे जीवन में एक आज़ादी लेके आना चाहिए। What Brother Matthew shared, that should bring us freedom in our life. एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो लास्ट वीक मैंने जो फेस किया। I would like to share an incident that happened with me last week मैं ऑफिस में था, when I was in office. मेरा वाइफ सुनंदा का फ़ोन आया My wife Sunanda called me और बोल रही थी कि मेरे से 500 रुपये घूम गया है मेरे को टेंशन चिंता हो रहा है। and she called me up to say that she lost rupees 500 and I'm very tensed about it. तो इसका उत्तर क्या हो सकते हैं? What should be the response to this? मैं बोला हम
मैं उसको बोला कि कोई चिंता मत करो, सारे बातें मिलकर परमेश्वर मेरे भलाई के लिए करता है। I told her that don't take tension of this. Let's give all this to the Lord in prayer. इस बात को लेकर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम चिंता में रहे। इस छोटा सा बात को लेकर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम चिंता करें उस बात। God does not want us to take tension of all these small things. परमेश्वर चाहता है हमको 100% फ्री करे। हम चिंता, परेशानी, हम टेंशन लेते हैं unnecessary। God wants to set us free from all our tensions, from all the burdens that we keep in our heart and mind. इसका एक रीजन है, पता है ब्रदर्स एंड सिस्टर, याद रखो, There's one reason, brothers and sisters. हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। We are all the children of God. सी मैं ऐसा कंपनी में काम करता हूँ, मेरा वो सारा चीज मेडिकल से लेकर सारा मेरा स्कूल फीस से लेकर वो केयर करता है। He, स्कूल फीस ये हो गया, मेरा मेडिकल हो गया। the Lord takes care of लॉर्ड ने मेरा my ऑफिस, the company that I work in takes care of everything. My medical insurance, the school fees of my children, everything. हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, वो हमसे ज्यादा वो केयर करता है और तुमको संभालता है। And we are the children of God, and God cares for us more than everything else. हमको फील नहीं लगेगा कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, We may not feel that we are the child of God, बट सिंपल चीज हमको करना है कि मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ but a simple thing that we need to do is believe that we are the child of God. परमेश्वर में बिलीव करता हूँ, ये मेरे साथ जो हुआ है मेरी भलाई के लिए हुआ है। We must believe that whatever happens is good, और मैं ये सब चीज मिलकर परमेश्वर मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। and everything works together for good. मैं एक वचन बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ, I would like to share one जो verse. भाई मैथ्यू ने शेयर किया था फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में। Let's turn our Bible to Philippians chapter 4 verse 6. किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारा प्रार्थना, निवेदन, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. ब्रदर्स सिस्टर, ये वचन क्या कहता है? शुरुआत किस तरह है? किसी बात का चिंता मत करो। This verse says that we need not take tension about ये anything. मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम किसी बात का चिंता मत करो। अगर है तो हमको क्या अगला वचन बता रहे कि तुम प्रार्थना, परमेश्वर मैं तेरे सामने रखता हूँ, ये मुझे चिंता, मैं ये नहीं बोल रहा कि चिंता नहीं आएगा तुम्हारे विचार के अंदर, थॉट में वो आ सकता है, बट इसलिए बोल रहा है कि प्रार्थना निवेदन करके परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। I am not saying this, but it is the word of the Lord that is saying that cast every thoughts unto the Lord by prayer and आज supplication. जाके ट्राई करो, Go, y'all can try this out. आज जाके अगर तुम्हारा माइंड में सच में चिंता परेशानी है, आज जाके ट्राई करो इस वचन को। If you have burdens and thoughts in your mind, और you साथ can में try this verse. और साथ में लिखेंगे परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है वो हमारे हृदय में आएगी। And verse 7 says, the peace of God which passes all understanding will keep our hearts and mind. और वो चीज हमको सुरक्षित रखेगी, And that thought will keep us safe. वो हमको विजय दिलाएगा। And he will give us victory. आमीन। Amen. भाई मैथ्यू के द्वारा बहुत प्रोत्साहन वचन प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। We heard a very encouraging message from Brother Matthew. भाई ने कहा कि चिंता मत करो कई चीज़ों के लिए। So first thing he spoke about not to be worried about anything. हमारे जीवन में 99% जो चिंता करते हैं वो होता ही नहीं है। So 99% of the things we worry about doesn't happen. कल का दिन फीस कैसे भरेगा चिंता करते, लेकिन वो फीस का इंतजाम पहले ही प्रभु ने कर लिया, लेकिन उसके बारे में हम चिंता करते हैं। So the fees of the school is we worry about that, but the Lord has already made provision for it. 99% हम जो चिंता करते हैं होता ही नहीं है ऐसा। So 99% of the things that we think about or worry about is already, it does not take place. मैं एक वचन से आशीष पाया हूँ। I was encouraged by a verse, जानते हैं नंबर्स चैप्टर 13, Numbers chapter सिर्फ 13. 3 मिनट में शेयर करना चाहूँगा। नंबर्स 13 Numbers chapter 13. वर्स अगर घर से पढ़ेंगे तो आप 25 से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं 30 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 30। Numbers chapter 13 verse 30. हम जानते हैं यहाँ पर जब इजरायली लोग जब गुलामी से बाहर आया So when the people of Israel came out of bondage, और एक
एक जंगल में वो लोग बसे हुए थे They were staying in the wilderness. और वहां पर मूसा, आहरोन और कालेब भी थे। So there Moses, Aaron and Caleb was there. और मूसा और आरोन कुछ लोगों को भेजा कनान देश देखने के लिए। And Moses and Aaron sent some people to see the land of Canaan. और कनान देखने के बाद वो लोग बोला कि सचमुच यहाँ पर दूध और मधु बहती है। So when they saw the city of Canaan, they understood that this is a land flowing with milk and honey. और वहां से कुछ फल भी लाए हैं। And they bought some fruits from there. लेकिन उन्होंने क्या कहा, But what did they say? लेकिन इस देश को हमारा वश में करने के लिए मुश्किल है। So they said that it is difficult for us to possess this land. वर्स 28, In verse 28 we read, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 28 यहाँ लिखा है कि परंतु उस देश में जो निवासी है बलवान है Nevertheless, the people who live in the land are strong, और उसके नगर गढ़ वाले हैं and the cities are fortified और लिखा है कि बहुत बड़े हैं and very large. और लिखा है कि दक्षिण देश की अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते थे और समुद्र के किनारे किनारे यरदन के नदी तट पर खनानी बसे हुए थे। Moreover, we saw the descendants of Anak there. Amalek is living in the land of the Negev, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites are living in the hill country, and the Canaanites are living by the sea and by the side of the Jordan. तो 30 के आगे पढ़ेंगे, वहाँ कहता है कि मूसा और लोगों के सामने बैठ कर कहते हैं, So here Moses sits before the people and says, वहाँ पर 30 वर्ष पढ़ेंगे, in verse 30, then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will surely overcome it. यहाँ कालिब क्या कहता है उनसे, What does Caleb say? हमारे पास ऐसा सामर्थ्य है, उस देश को हम वश में कर सकते हैं। He says that we have such a strength where we can possess the land. लेकिन वहां पर कुछ लोग हैं, वो कहता है कि हमारे अंदर उतना शक्ति नहीं है उसको वश में करने के लिए। But there were some people who said that we do not have much strength to overcome and possess the land. वर्स 31, Verse पर 31. जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने के लिए शक्ति हम में नहीं है। But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are too strong for us. प्रिय भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। So many a times in our life also we face this. यहाँ पर खाली कालेब परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को ऊंचे स्थान पे देख रहे हैं, So here Caleb is seeing the Lord at a higher place. लेकिन वहां जो कालेब के संग थे वो लोग परमेश्वर को एक घास के समान देख रहे हैं। But the other men were seeing the Lord as grass. कई बार हम ऐसा होता है कि जीवित परमेश्वर को घास के समान देखते हैं और किसी और को हम परमेश्वर के स्थान देते हैं। So many a times we see the Lord like tiny grass, and we see other men who are at a higher position. और परमेश्वर कहता है कि इसके बाद आप कभी भी कनान में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ कालेब और जोशुआ पे प्रवेश करेगा। Then the Lord says that you will not be able to enter the promised land, only Caleb and Joshua will be able to enter. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे घरों में हमारे बच्चे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। So many a times our children are not able to do some certain things. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर में एक ऑफिस है, In my house there is an office, वो ऑफिस में एक क्लर्क में हूँ and I am a clerk in that office. और मेरे बच्चे लोग मेरे क्लर्क के पास कुछ समस्या लेके आता है And my children are coming to the clerk with their problems. और ये क्लर्क क्या करता है, ये सारी चिंता को लेकर बोलते हैं, ये फाइल कैसे क्लियर करूं। And what does this clerk say? ये क्लर्क कहता है, जैसे कि क्लर्क में हूँ, क्लर्क कहता है कि इन लोगों का समस्या मैं कैसे सॉल्व करूं। So this, I am the clerk and I say, how will I be able to solve their problems? इसको लेकर मैं चिंता कर रहा हूँ, And I am worrying about it. लेकिन मेरे पास एक सीनियर मैनेजर है, But I have a senior manager above वो me. फाइल लेकर मैं उसको हाथ में सौंप दूंगा I give that file in his hand और मेरे बच्चों को कहूंगा, and I'll tell my children, ये प्रॉब्लम मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, I cannot solve this problem क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है because my Lord is the living और Lord. मेरे पास एक अनुभवी मैनेजर है And I have a manager who has lot of experience. और ये फाइल लेकर उसके हाथ में सौंप दूंगा। I give my file in his hand मैं निश्चित रहूंगा क्योंकि उसके पास अनुभव है, वो कैसा सॉल्व करना है। and I'm sure that he will be able to solve my problems. प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा कौन सा भी समस्या हो, मैं कहना चाहता हूँ यीशु के नाम से,
आप उसको, जैसा भाई ने कहा कि हर एक चीज पिता के सामने सम्मुख लेके जाओ। So, any problem that we have, dear brothers and sisters, we need to bring it before the Lord. या हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, Is our business not running well? चिंता मत करो, प्रभु के पास ले जाओ। Do not worry, take it to the या Lord. हमारा डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा नहीं हो रहा है, Our documents are not being done in time. इसका भी चिंता आता है, लेकिन चिंता मत करो, उसको यीशु के पास ले जाओ। We tend to worry about such things, but let us bring it to the Lord. या हमारा बिल्स कैसे हम लोग पे करना चाहेंगे, वो भी नहीं हो रहे, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के पास ले जाओ। We are wondering how our bills will be paid. Do not worry, bring it to the Lord. और इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से घर बैठकर सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दो, आपको मेहनत भी करना है। So it doesn't mean that you just relax at home and say that the Lord will take प्रिय care. भाइयों बहनों, जो संसार में चिड़ियां हैं वो भी अपनी जाड़ में बैठकर मुंह आ करके नहीं बैठते कि परमेश्वर मेरा मुंह में खाना ला के डालेगा। वो लोग अपने पंख हिलाकर अपने खाने के लिए तलाश करता है। So even the birds of the air, they do not just sit on the tree and say that the Lord will provide. They work hard and build their nest and find food. प्रभु का वचन कहता है कि हम चिट्टियों के पास जाकर बुद्धि सीखना है, कैसा काम करना है। And the Lord tells us that we have to learn from the ants. और धरती की छोटी एनिमल्स, जानवर, उनके पास जाकर किस तरह मेहनत करने सीखने हमको। We have to look at the small animals and learn from them. और पक्षियों को देखो कैसे अपना पंख हिलाकर दूर दूर जाकर अपने खाना इकट्ठा करते हैं। How the birds of the air, they fly and they collect their food. उनको भरोसा है परमेश्वर उनके लिए एक सारा खाना इंतजाम रखा है, They trust in the Lord that He will provide for और them. उनके लिए अपने पंख हिलाकर जा रहे हैं। And they flap their wings मैं and कहना go. चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, Dear brothers and sisters, I want to say, हमको ये चीज रिप्लेस करना है। we need to replace this हमारी thing. चिंता को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास जाकर रिप्लेस करना है। We need to replace our worries with prayer. मैं किया हूँ ऐसा। I am also, आज मैं कहना चाहता हूँ 99% में से मैं कहना चाहता हूँ कई चिंताओं से प्रभु ने मुझे विजेता दिया है। So I also do this in my life, and I have seen that 99% of the problems have been taken away by the Lord, क्योंकि प्रभु मेरा चिंता किया है। because the Lord has cared for me. प्रभु आपका चिंता कर रहा है, The Lord cares for प्रभु you. हम सबका चिंता कर रहा है। The Lord cares for all of us. वचन कहता है कि परमेश्वर आपका चिंता करता है। The Word of God says that the Lord cares for us.